Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Shahid Latif, Associate Professor at Department of Computer Science, Sarhad University, Peshawar. Today we will learn a new lecture from the course of Electronics 1. Course code for Electronics 1 is EE216, while this is 2-1 credit hour course. It means that we have to cover 2 hour theory per week, while there is 1 credit hour which is equal to 3 contact hour lab work requirement as well. The topic we will discuss in this lecture is about diode applications, and in diode application today we will learn the diode limiters and the diode clampers. Course details are such that we are in week number 5 and today we will learn lecture number 9, and in lecture number 9 we will continue the concepts of a diode applications, and in diode applications we will discuss 2 important applications of a diode, that is the diode limiters, are simply known as a diode clippers, and the diode clampers, which can also be termed as the DC restorers. Before starting our new lecture, let's have a look on the previous lectures. If you remember, in lecture number 1 we introduce our course of Electronics 1 by explaining the course description, the tentative outlines and the week-wise breakdown of these outlines, the recommended books for this course of Electronics 1, the prerequisite details for the course of Electronics 1, and the definition of the electronics formally and informally. Then in lecture number 2 we discuss the atom and the structure of an atom. We explain what is a Bohr model, what are the particles of a atom, that is electron, proton, neutron, and the nucleus, etc., etc. Similarly, we discuss the atomic number of an atom. We also discuss what are the valence electrons, are the outermost shell electrons are known as a valence electron. We discuss what are the shells, which are the group of orbits, and finally we discuss a process where the losing or gaining of electron takes place, that is the ionization. In lecture number 3 we classify the matter on the basis of conductivity, and we found that there are 3 distinct classes, that is the insulators, the conductors, and the semiconductors. Insulators are those materials which cannot conduct under the normal conditions, while on the other hand conductors are those materials which can conduct easily almost in every condition, especially in normal conditions. On the other hand, semiconductors are those materials which have some properties of insulators as well as conductors. We can also define the semiconductors as those materials which are neither good insulators nor good conductors, or which can be used as insulators or the conductors. We also discuss the energy bands for all these 3 classes of matter, valence band and the conduction band, and finally we discuss the covalent bond and the silicon crystal in lecture number 3. Then in lecture number 4 we discuss the conduction in semiconductors. Conduction in semiconductor means the current flow in semiconductors. We also discuss n-type and p-type semiconductors formation as well. In this lecture we discuss what is an electron and hole pair, what is a recombination process where electron meets with the hole again, what is the electron current and the hole current, and what is doping. And doping is a process where we add impurities in our intrinsic semiconductor. Similarly, as a result of a doping, we may have n-type or p-type semiconductors, so we also discuss the formation of the n-type and p-type material. In lecture number 5 we discuss the p-n junction formation. The p-n junction means the meeting point of the p-type and n-type material, so how it is created and how the depletion region is created across the p-n junction. Then we discuss the energy diagrams during the formation of a p-n junction and the formation of a depletion region. In lecture number 6 we discuss the p-n junction diode, the simple diode, and its working. We discuss what is biasing and how a diode can be connected in its forward bias mode and in its reverse bias mode. In forward bias, what is forward current and what is forward voltage. Similarly, in reverse bias, what is the reverse current, what is meant by reverse voltage, and what is the breakdown voltage, or you can say that reverse breakdown voltage. In lecture number 7 we discuss the voltage current characteristics of a diode.
Here we discuss the VI characteristic curve for the forward bias mode of a diode, for the reverse bias mode of a diode, and the combined VI characteristic curve including both forward bias and the reverse bias, are presenting both forward and reverse bias. We also discuss the effect of temperature on the VI characteristic curve of a PN junction. Then we discuss the diode approximation or the diode models, that is the ideal diode model, the practical diode model, and the complete diode model. In lecture number 8, we discuss the diode applications, which is actually chapter number 2 of our textbook. Here in diode application, we start with the rectifiers, the two types of rectifiers, that is the half-wave rectifier and full-wave rectifier. In half-wave rectifier, we discuss the block diagram, the operation of a half-wave rectifier circuit, the output voltage and the average voltage of the output voltage, the effect of the barrier potential on the V out of a half-wave rectifier, and the peak inverse voltage for the half-wave rectifier. Similarly, we discuss the full-wave rectifier and its two types, that is the center tape transformer based full-wave rectifier and the bridge full-wave rectifier. And we also learn all these terms we have already learned for the half-wave rectifier, for the full-wave rectifier as well. In this lecture, we will learn another important application of a diode, that is the diode limiter, which can be termed as a diode clipper, और it can also be termed as a diode slicer. मतलब इन तीनों टर्म से या इन तीनों नामों से हम एक ही सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं, डायोड लिमिटर, डायोड क्लिपर और डायोड स्लाइसर. The operation of a simple diode limited circuit will be discussed in this lecture. Then the types of a simple diode limiter circuit, that is the positive limiter, the negative limiter, and a dual limiter will be discussed. After that, we will discuss a special case of a limiter circuit, which is known as a biased limiter circuit. After discussing the limiter circuit, then we will move toward the another application of a diode, that is the diode clampers, or termed as a DC restorer. मीन्स डायोड क्लैम्पर को हम DC restorer भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस क्लैम्पर में जो क्लैम्पिंग एक्शन है उसमें एक्चुअली DC वोल्टेज को रिस्टोर किया जाता है या ऐड किया जाता है, तो इस वजह से इस बिना पर इसको DC restorer भी कहा जाता है. We will discuss the operation of a diode clamper and its two types, that is the positive clamper and the negative clamper, will be discussed in this lecture. Recommended books for this course include the Electronic Devices with Conventional Current version, authored by Thomas L. Floyd. We are using 10th edition of this book. If you have any latest edition or even an older edition, it is also acceptable. The other book is Electronic Devices with Electron Flow version, authored by the same author, that is the Thomas L. Floyd, and we are using the same edition, that is the 10th edition. These are the two recommended books for this lecture as well as for this course of Electronics 1. But remember that you will see that majority of the contents of this lecture are taken from the first book, that is the Electronic Devices with Conventional Current version. Now starting with the diode limiter. As its name reveals, limiter किसी चीज को लिमिटाइज करने वाला, लिमिटेड बनाने वाला, और क्लिपर सिग्नल में से एक मखसूस हिस्से को क्लिप करने वाला, और स्लाइसर किसी गिवन सिग्नल को स्लाइसेस में कन्वर्ट करने वाला, उसके पीसेस बनाने वाला, उसके स्लाइसेस बनाने वाला. सो तीनों हमारे पास एक ही सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. द टाइप्स ऑफ ए लिमिटर सर्किट इंक्लूड्स द पॉजिटिव लिमिटर, द नेगेटिव लिमिटर एंड द डुअल लिमिटर. So starting with the positive limiter, it limits or clips off the positive part of the input voltage. जैसे कि इसके नाम से जाहिर है positive limiter, यानी अगर हमारे पास इनपुट वोल्टेज AC है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल होंगी, तो इस सर्किट का जो पॉजिटिव सेक्शन है, जो पॉजिटिव पल्स है, उसको लिमिटाइज करने वाला या क्लिप ऑफ करने वाला जो सर्किट होगा, दैट विल बी नोन एज अ पॉजिटिव लिमिटर. अगेन, it limits or clips off the positive part of the input voltage, जो कि हमारे पास AC होता है. As the input voltage goes positive, start में जब हमारे पास input voltage positive होगा, the diode becomes forward bias and conducts current. डायोड उसके लिए forward bias होगा और forward bias में होने की बदौलत वो करंट को कंडक्ट करेगा. At point A, point A is limited to 0.7 volt when the input voltage exceeds this value.
और अगर हमारे पास सिलिकॉन का बना हुआ है तो हम कह सकते हैं कि चूंकि इसके क्रॉस 0.7 वोल्ट ड्रा होगा तो जो हमारे पास पॉइंट ए होगा वो 0.7 तक लिमिटेड होगा। व्हेन द इनपुट वोल्टेज एक्सीड्स दिस वैल्यू, बावजूद इसके कि हम इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएं, हमारे पास 0.7 से पॉइंट ए जो है इंक्रीज नहीं होगा। व्हेन द इनपुट वोल्टेज गोज बैक बिलो 0.7 वोल्ट, जैसे ही हमारा इनपुट वोल्टेज दोबारा से 0.7 से लेस हो जाएगा, द डायोड इज इन रिवर्स बायस एंड अपीयर एज एन ओपन, डायोड फिर कट ऑफ मोड में चला जाएगा, या आप उसको कह सकते हैं कि रिवर्स बायस में होगा, और इट विल अपीयर एज ए ओपन, यानी ये कंडक्शन स्टॉप कर देगा। The output voltage looks like the negative part of the input voltage। तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास आउटपुट पे जो वोल्टेज मिल रहा है ये बिल्कुल उसी तरह से नजर आ रहा है जैसे हमारे इनपुट वोल्टेज में नेगेटिव पार्ट्स थे, यानी पॉजिटिव को ऑलमोस्ट क्लिप कर दिया गया है और आपको आउटपुट पर सिर्फ और सिर्फ इनपुट के नेगेटिव पार्ट्स ही मिल रहे हैं। लुक एट द डायग्राम। In this diagram, limiting action is performed at the positive alternations, यानी positive alternations की limiting actions जो है वो शो की गई है। The diode is in forward bias during the positive alternation above 0.7 and reverse bias during the negative alternation। अब हम देखें यहाँ से ये जो आपको शेडेड एरिया नजर आ रहा है that is representing the पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट वोल्टेज। जब ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ होगा तो यहाँ पर इस बैटरी का ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव। सो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल करंट फ्लो हमारे पास करंट पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहा है और इस डायोड के थ्रू होते हुए अपना नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचकर अपना लूप जो है वो कंप्लीट कर रहा है। नाउ वी आर टेकिंग द आउटपुट एट पॉइंट ए, हम पॉइंट ए या इस आर एल के क्रॉस अपना आउटपुट ले रहे हैं। तो चूंकि हमारे पास डायोड इस वक्त फॉरवर्ड बाइस में है और हम कहते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में होने की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ 0.7 वोल्ट ड्रॉप करेगा। तो 0.7 वोल्ट ड्रॉप करने का मतलब है कि आरएल और डायोड आपस में पैरेलल में है, तो जो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगी वही हमारे पास आरएल के क्रॉस भी होगी। हम चूंकि अपना आउटपुट आरएल के क्रॉस ले रहे हैं, सो वी आर हैविंग ओनली 0.7 वोल्ट अक्रॉस आरएल। जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी आएगी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। जब पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, नो दैट विल बी द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दैट विल बी द नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट फ्लो यहाँ से स्टार्ट करेगा और जब इस डायोड में से फ्लो करना चाहेगा तो ये डायोड रिवर्स बाइस में होने की बदौलत इसको कंडक्ट नहीं करेगा। जब ये कंडक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास कट ऑफ मोड में है। जब कट ऑफ मोड में है, रिवर्स बाइस में है, किसी किस्म की कंडक्शन नहीं कर रहा, तो आने वाला जितना भी वोल्टेज है वो सारे का सारा यहाँ पर ड्रॉप होगा, बिकॉज इट इज प्रेजेंटिंग नाउ द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। लाइक अगर मैं इसको यूं शो करूं तो दैट इज बिहेविंग लाइक अ ओपन स्विच। ओपन स्विच की इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है क्योंकि उसमें से करंट के फ्लो करने के चांसेस ही नहीं होते। तो आने वाला तमाम का तमाम नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा। चूंकि हम आउटपुट आरएल के क्रॉस ले रहे हैं जो कि इस डायोड के पैरेलल में है, सो हियर वी विल हैव अ कंप्लीट नेगेटिव हाफ साइकिल एट द आउटपुट। तो जब हमारे पास आउटपुट हमें मिला पॉजिटिव में सिर्फ 0.7 जबकि नेगेटिव हमारे पास कंप्लीट है, सो वी कैन से दैट कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्लिप किया गया है या उसमें से 0.7 के अबव जितना वोल्टेज था उसको क्लिप ऑफ किया गया है। नाउ the negative limiter if the diode is turned around। अब अगर हम डायोड की पोलैरिटीज को चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, यानी डायोड इस वक्त इस नीचे की तरफ है, उसका पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे की तरफ है। अगर हम इसको फ्लिप कर दें, फ्लिप वर्टिकली कर दें, यानी इसका नेगेटिव ऊपर ले आए और पॉजिटिव इसका नीचे की तरफ ले आए, देन इट विल बिकम अ नेगेटिव लिमिटर। सो वी कैन से दैट इफ द डायोड इज टर्न अराउंड the negative part of the input voltage is clipped off। अब क्या होगा कि पॉजिटिव के लिए हमारे पास डायोड जो है वो रिवर्स बाइस में होगा, जबकि नेगेटिव पार्ट के लिए फॉरवर्ड बाइस में होगा। और जब नेगेटिव के लिए फॉरवर्ड बाइस में है तो इस इनपुट वोल्टेज का नेगेटिव पार्ट जो है उसको क्लिप किया जाएगा। पिछली केस में जब डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में था पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव में क्लिपिंग हो रही थी। अब वो फॉरवर्ड बाइस में है डायोड नेगेटिव पार्ट के लिए तो नेगेटिव पार्ट की क्लिपिंग हुआ करेगी। When the diode is forward bias during the negative part of the
input voltage. So point A is held at 0.7 volt with negative sign. Negative sign क्या represent कर रहा है कि अब हमारे पास negative half cycle की बात चल रही है by the diode drop, और डायोड के अक्रॉस कंटिन्यूसली 0.7 ड्रॉप हो रहे हैं विद नेगेटिव साइन. सो हमें आउटपुट पर नेगेटिव हाफ के दौरान सिर्फ और सिर्फ 0.7 वोल्ट मिलेगा. व्हेन द इनपुट वोल्टेज गोज अबव -0.7, और जैसे ही 0.7 से वोल्टेज ज्यादा होगा लाइक -0.6, -0.5 या 0 वोल्ट या 1, 2, 3 वोल्ट वगैरह वगैरह, तो हमारे पास उसके लिए हमारा जो डायोड है दैट इज नो लॉन्गर इन फॉरवर्ड बाइस, अब वो फॉरवर्ड बाइस में नहीं रहेगा, एंड अ वोल्टेज अपीयर अक्रॉस आर एल प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वोल्टेज. और जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है वो सारे का सारा डायोड के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, और डायोड के अक्रॉस ड्रॉप होने का मतलब है कि वो आर एल के अक्रॉस हमें मिल रहा है because both are in parallel and we are getting the same voltage as the input voltage. Here you can see that कि जब हमारे पास input half cycle negative हो, that is a shaded area हमें शो कर रहा है negative half cycle of the input voltage, तो हमारे पास polarity reverse हो गई है. अब नीचे positive ऊपर negative है, करंट यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो इस लूप में यहाँ से होते हुए हमारा ये डायोड कंडक्शन करेगा. जब ये कंडक्शन करेगा, ठीक है, अब कंडक्शन जब हो रहा है तो इसका मतलब है दैट इज फॉरवर्ड बाइस. जब ये फॉरवर्ड बाइस में है तो इसके अक्रॉस 0.7 वोल्ट ड्रॉप होंगे, लेकिन दौरान किसका चल रहा है -VP का, तो हम कह सकते हैं कि जो 0.7 है दैट विल बी विद नेगेटिव पोलैरिटी. -0.7 यानी नेगेटिव साइड ऑफ द एक्सेस जो है उस तरफ होने चाहिए. जो हमारे पास 0 वोल्टेज लाइन है ना, जिसको हम डीसी लाइन भी कहते हैं, इसके नेगेटिव साइड की तरफ होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय -0.7. फिर जब इसी सर्किट में जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो पॉजिटिव के लिए ये टर्मिनल पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, करंट यहाँ से स्टार्ट करेगा. जब करंट यहाँ से स्टार्ट करेगा, अब पॉजिटिव के लिए ये डायोड क्या है, रिवर्स बाइस में है, तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव हमें आउटपुट पर एज इट इज मिल जाएगा बिकॉज तमाम का तमाम आने वाला वोल्टेज अक्रॉस डायोड ड्रॉप हो रहा है, और डायोड या आरएल के अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं, तो हमारा पॉजिटिव साइकिल जो है वो कंप्लीट हमें मिल जाएगा. तो पॉजिटिव एज इट इज है जो कि हमारे पास इनपुट में है, तो किसी किस्म की उसमें क्लिपिंग वगैरह नहीं हो रही. लेकिन नेगेटिव को अगर हम देखें तो -VP लेट से वो -10 वोल्ट का था, तो -10 के बजाय हमें यहाँ पर सिर्फ -0.7 ही मिल रहा है. So this figure is the limiting action of the negative alternation. The diode is forward biased during the negative alternation below -0.7 volt and reverse biased during the positive alternation. एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, and according to this example, what would you expect to see displayed on an oscilloscope connected across RL? यानी हमने इस RL के across एक oscilloscope को कनेक्ट किया हुआ है, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि इस ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा इन द लिमिटेड सर्किट शोन इन फिगर 2.53. इस सर्किट में हमें एक्चुअल में आउटपुट वेवफॉर्म जो है वो मालूम करनी है, जो कि हमें ऑसिलोस्कोप पर डिस्प्ले होना है. सो यू कैन सी दैट हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो ±10 वोल्ट का है, AC इनपुट वोल्टेज है. जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा सो वी कैन से दैट कि करंट यहाँ से स्टार्ट करेगा, जब यहाँ पर पहुंचेगा तो ये उसको रिवर्स बाइस पे मिल रहा है. रिवर्स बाइस में होने का मतलब है कि आपका 10 का 10 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, और चूंकि हम RL के क्रॉस ले रहे हैं सो वी कैन से दैट अगर आइडियल है हमारे पास 10 का 10 वोल्ट यहाँ पर मिल जाएगा. एज्यूम कर लें कि डायोड को हम लेट से आइडियल कंसिडर कर रहे हैं. जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो पोलैरिटीज रिवर्स हो जाएंगी. अब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव. अब करंट यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ से फ्लो करना चाहेगा, तो ये डायोड अब फॉरवर्ड बाइस में है. फॉरवर्ड बाइस में होने का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ 0.7 वोल्ट ड्रॉप होगा. अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो अगर हम डेटा शीट पे देखें ना और हमें पता हो कि ये सिलिकॉन का है, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज 0.7 यहाँ पे ड्रॉप होगा. बाकी का जो है वो R1 और RL में से आप कह सकते हो कि उसमें डिवीजन होगी वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू, या चलें आप यूं कंसिडर कर लें कि बाकी जितना भी है वो R1 के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है. तो यहाँ पर हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में 0.7 जब नेगेटिव हाफ साइकिल का विद नेगेटिव साइन,
और यही चीज़ हमारे पास आउटपुट पे अपीयर होगी। तो पॉजिटिव में कंप्लीट, जबकि नेगेटिव में हमारे पास 0.7 वोल्ट हमें मिल रहा है, तो हमारी क्लिपिंग हो रही है। ये चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें, अगेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड कंडक्ट्स व्हेन द इनपुट वोल्टेज गोज बिलो -0.7 वोल्ट। कि पहली बात तो आपने ये नोट करनी है कि ये नेगेटिव क्लिपर है, जिसमें नेगेटिव के दौरान हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा और उसके क्रॉस सिर्फ और सिर्फ 0.7 विद नेगेटिव साइन ही मिलेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया ना, तो बाकी चीज़ भी आसान है। So for the negative limiter, determine the peak output voltage across RL by the following equation। पहले हम इस इक्वेशन के थ्रू Vp out मालूम करते हैं। So RL divided by R1 plus RL into Vp in, that is the voltage divider rule, कि जहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस R1 और RL के बीच में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। चूंकि हम अपना आउटपुट अक्रॉस RL ले रहे हैं, तो RL को ऊपर नीचे जो है टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R1 plus RL हो जाएगा। And we are having 100 kilo ohm as a RL, 110 as the sum of R1 plus RL। किलो ओम्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। 100 को जब आप 110 पे डिवाइड करेंगे और 10 वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू आर हैविंग द 9.09 वोल्ट। यानी यहाँ पर हम अगर आइडियल था तो 10 वोल्ट कंसीडर कर रहे थे ना। आइडियल केस में अगर लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास RL की वैल्यू बहुत मिनिमम है या हमारे पास RL से है ही नहीं, तो फिर उस केस में हमारे पास यहाँ पर 10 वोल्ट मिलने थे। लेकिन चूंकि RL और R1 दोनों रेजिस्टेंस मौजूद है, कुछ न कुछ वोल्टेज जो है RL के क्रॉस ड्रॉप होगा, बाकी हमें RL के क्रॉस मिलेगा। सो वी आर फाइंडिंग अक्रॉस द RL, तो इस वक्त RL के क्रॉस हमें 9.09 वोल्ट जो है वो मिल रहे हैं। R1 की वैल्यू को मजीद कम कर दें, सो यू विल गेट द मैक्सिमम अक्रॉस द RL। क्योंकि लेट्स से अगर हम R1 को 1 ओम कर दे से, तो RL डिवाइडेड बाय RL अप्रोक्सीमेटली दोनों इक्वल होंगे, RL के साथ कैंसिल होगा, एंड यू कैन से दैट कि हमारे पास तकरीबन 10 वोल्ट ही अब यहाँ पे मिलेगा, या 99.99 वोल्ट जो है वो मिलेंगे, मैक्सिमम हमें मिलेगा। बहरहाल हमारे पास पॉजिटिव के दौरान हम देख सकते हैं किसी किस्म की क्लिपिंग नहीं हुई। ये जो कमी बेशी हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर। बाकी नेगेटिव में हम देख सकते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप ऑफ किया गया है और उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ -0.7 वोल्ट ही हमें डिस्प्ले किया गया है। ओके, द डुअल लिमिटर, एज इट्स नेम रिवील्स, डुअल मीन्स के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से हमने क्लिपिंग करनी है। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिमिटर सर्किट्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ ए 2 डायोड्स। ये 2 डायोड्स पर मुश्तमिल है, डायोड D1 एंड डायोड D2 that are used in that diode limiter, one for the positive half cycles and one for the negative half cycle। हमने देखा कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था या नेगेटिव हाफ साइकिल था उसमें एक एक डायोड यूज हो रहे थे, ठीक है, या एक ही डायोड था, पॉजिटिव में एक डायरेक्शन में और नेगेटिव में दूसरी डायरेक्शन में हम उसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो डुअल लिमिटर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को क्लिप ऑफ करवाना है, ठीक है। तो दोनों को क्लिप ऑफ करवाने के लिए हम एक डायोड को तो यूज नहीं कर सकते, तो एट अ टाइम हमें पैरेलल में 2 डायोड इस्तेमाल करने पड़ेंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ताकि एक पॉजिटिव के लिए काम कर सके और दूसरा नेगेटिव के लिए काम कर सके। The diode D1 clip off the positive part of the input voltage। डायोड D1 पॉजिटिव को क्लिप करेगा। When input voltage reach 0.7 वोल्ट, डायोड D1 starts conducting। यानी जब हमारे पास 0.7 वोल्ट होगा पॉजिटिव पे, तो D1 कंडक्शन स्टार्ट कर लेगा, और चूंकि दोनों पैरेलल में हैं, तो हम D1 के अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिलेगा वही हमारे पास आउटपुट होगा। इट लिमिट्स द वेवफॉर्म टू 0.7 वोल्ट, और पॉजिटिव पार्ट होगा इनपुट वोल्टेज का, वो 0.7 पे लिमिटेड हो जाएगा। D2 डज नॉट कंडक्ट अंटिल द वोल्टेज रीच -0.7। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो डायोड D1 रिवर्स बायस में होगा, लेकिन उसी दौरान हमारे पास डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस में है, और फॉरवर्ड बायस में होने का मतलब वो कंडक्शन करवा रहा है, तो हमारे पास -0.7 वोल्ट तक जब पहुंचेगा कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें इस डायोड D2 के अक्रॉस परमानेंटली -0.7 मिलेंगे। तो D1 के अक्रॉस 0.7 वोल्ट विद प्लस साइन और D2 के अक्रॉस 0.7 वोल्ट विद नेगेटिव साइन। Diode D2 clip off the negative part of the input voltage when the input voltage reach -0.7 volt, D2 starts conducting।
कि नेगेटिव के दौरान हमारे पास D2 जो था वो कंडक्शन कर रहा था, लिमिटिंग द वेव फॉर्म टू -0.7 वोल्ट। यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं डुअल लिमिटर हमें शो किया गया है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिमिटर सर्किट। जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो करंट यहाँ से आएगा, जब करंट यहाँ से आएगा डायोड D1 कंडक्शन कर रहा है, और कंडक्शन करने की वजह क्या है कि 0.7 वोल्ट के बाद ये कंडक्शन स्टार्ट कर लेगा। सो वी आर हैविंग कंटिन्यूअसली 0.7 वोल्ट अक्रॉस द D1 अक्रॉस द V आउट। और अगर हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान हमारे पास करंट की फ्लो यूं होगी अक्रॉस द डायोड नंबर D2। जब डायोड नंबर D2 के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा, सो वी कैन से दैट कि अब यहाँ पर -0.7 ड्रॉप होगा एंड वी आर हैविंग -0.7 वोल्ट एट द आउटपुट। तो कंटिन्यूअसली हमें 0.7 और -0.7 दोनों तरफ से जो है वो क्लिपिंग मिल रही है। इन बायस लिमिटर स्टार्टिंग विद द बायस्ड पॉजिटिव लिमिटर, यानी एक्चुअल में ये वही पॉजिटिव, नेगेटिव और डुअल लिमिटर्स ही होंगे, लेकिन से अगर हमारी रिक्वायरमेंट 0.7 की नहीं है, लेट्स से हम चाहते हैं कि 0.7 से ज़्यादा या 0.7 से कम जो है हम क्लिप ऑफ करवाएं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लिमिटर में डायोड के साथ साथ बायसिंग करनी होगी। यानी बायसिंग से मुराद हमें डीसी बैटरी को इस्तेमाल करना होगा, ताकि वो डीसी बैटरी, जैसे कि आपको इस फिगर में शो कर रहा है या शो हो रहा है, ताकि वो डीसी बैटरी हमारे इस डायोड के साथ मिलकर हमें वो मतलूबा लेवल प्रोवाइड कर सके जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। So the level to which an AC voltage is limited can be adjusted by adding a bias voltage V bias in series with the diode. डायोड हमें by default 0.7 की दे रहा था। अगर हम कहें कि हमारी रिक्वायरमेंट लेट से 0.7 के बजाय 3 वोल्ट की है, so what we have to do, हमें ये 3 वोल्ट पॉजिटिव में क्लिप करवाने हैं। अब डायोड की 0.7 मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है डायोड के क्रॉस, तो V बायस को हम यूं इस्तेमाल करेंगे कि वो 0.7 के साथ मिलकर हमारा वो 3 वोल्ट का जो टारगेट है वो प्रोड्यूस कर सके। सो लेट्स से इन दिस केस अगर मैं बैटरी इस्तेमाल करूं 2.3 वोल्ट वाली जो कि सीरीज में हो इस डायोड के साथ, और सीरीज में भी ऐसे हो कि दोनों का यानी डायोड के क्रॉस वोल्टेज और V बायस वोल्टेज जो है वो आपस में ऐड अप हो, तो ये ऐड होने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, 3 वोल्ट। Now the voltage at point A must equal V bias plus 0.7, यानी इस पॉइंट पर जिसके क्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं वोल्टेज कितना होना चाहिए, V bias और प्लस 0.7 वोल्ट बिफोर द डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बायस एंड कंडक्ट्स, इससे पहले कि डायोड हमारे पास कंडक्शन स्टार्ट करे और फॉरवर्ड बायस में हो। Once the diode begins to conduct, जब एक दफा डायोड कंडक्शन स्टार्ट कर लेगा, the voltage at point A is limited to V bias plus 0.7। जब कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपके पास परमानेंटली डायोड के अक्रॉस 0.7 और वो बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज आपने प्रोवाइड किया वो ऐड अप होंगे और आपको कांस्टेंट आउटपुट जो है वो अक्रॉस RL मिलेगा जो कि V बायस plus 0.7 पर मुश्तमिल होगा। So that all input voltages above this level is clipped off, और इसके बाद जितना भी हमारे पास वोल्टेज लेवल है, चाहे वो 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, जितना भी है वो क्या होगा, उसको क्लिप ऑफ किया जाएगा। सो यू कैन सी दैट कि हमारे पास हमने एज्यूम किया हुआ है कि यहाँ पर 3 वोल्ट हमें मिल रहा है, जबकि नेगेटिव के दौरान क्या होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी पोलैरिटी हमारे पास रिवर्स हो जाएगी, हम कहेंगे कि करंट हमारे पास पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और जब यहाँ पर पहुंचेगा तो डायोड रिवर्स बायस में होने की वजह से किसी किस्म की कंडक्शन नहीं करेगा। जब किसी किस्म की कंडक्शन नहीं कर रहा तो आने वाला तमाम का तमाम नेगेटिव वोल्टेज हमें RL के क्रॉस मिल रहा है एंड वी आर हैविंग द सेम हाफ इनपुट साइकिल एट आवर आउटपुट। हमें जो इनपुट पे मौजूद था वो वही चीज हमें आउटपुट पर मिल रही है। सो दैट इज द पॉजिटिव लिमिटर विद बायस्ड, यानी बायस्ड मींस कि विद डीसी बैटरी, हमने यहाँ पर डीसी बैटरी इस्तेमाल करवा ली है। सिमिलरली द बायस्ड नेगेटिव लिमिटर टू लिमिट अ वोल्टेज टू अ स्पेसिफाइड नेगेटिव लेवल। अब लेट्स से हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास -3 वोल्ट जो है वो हमें नेगेटिव पे मिले, वरना बाय डिफॉल्ट -0.7 का मिलना था,
हम चाहते हैं कि नहीं, हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि नेगेटिव लेवल में क्लिपिंग हो और वो भी -3 वोल्ट की। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ पर जो बैटरी इस्तेमाल करनी है, नो अगेन वी हैव टू कनेक्ट दैट बैटरी इन सीरीज विद द डायोड। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा। जब ये फॉरवर्ड बाइस में होगा तो इसके अक्रॉस 0.7 वोल्ट ड्रॉप होंगे विद नेगेटिव साइन। हमारे पास बैटरी का वोल्टेज -2.3, लेट से अगर हम इसको सेट कर देंगे तो -0.7 -2.3 के साथ ऐड अप होंगे एंड कलेक्टिवली वी विल हैव द -3 वोल्ट एट पॉइंट ए। और यही वोल्टेज फिर हमारे पास हमारे आउटपुट पर नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान अपीयर होगा। In this case, the voltage at point A must go below -V bias -0.7 volt to forward bias the diode and initiate limiting action as shown in figure. बिल्कुल इसी अंदाज में जो हमारे पास डुअल लिमिटर था, उसी अंदाज में हमारे पास बायस्ड डुअल लिमिटर भी पॉसिबल है। यहाँ पर इस एग्जांपल में यही शो किया गया है कि this figure 2.58 shows a circuit combining a positive limiter with a negative limiter, यानी that is a dual limiter। और dual limiter में भी simple dual limiter नहीं है बल्कि biased dual limiter है। So determine the output voltage waveform of that circuit। इस सर्किट का हमने आउटपुट मालूम करना है। Again you can see that we have a 10 volt input voltage at the input of the circuit। ये बैटरी हमें प्रोवाइड कर रही है। जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ होगा तो पॉजिटिव हाफ के दौरान पोलैरिटी यूं होगी कि करंट हमारे पास पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और डायोड D1 उसको कंडक्ट करेगा और नेगेटिव टर्मिनल तक जाके हमारा लूप जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इस दौरान डायोड D2 रिवर्स बाइस में था तो उन्होंने करंट को कंडक्ट नहीं किया। डायोड D1 को जब हमने देखा, अगर वो सिलिकॉन का बना हुआ है तो दैट इज प्रोवाइडिंग 0.7 वोल्ट फॉरवर्ड बाइस में, और इसके साथ सीरीज में बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ में हमें परमानेंटली 5.7 वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा, जबकि इसके अलावा बाकी जितना भी है यानी 10 में से 5.7 को माइनस कर दोगे तो वो क्लिप ऑफ हो रहा है। इनपुट पे 10 वोल्ट था, आउटपुट पे हमें सिर्फ और सिर्फ 5.7 वोल्ट मिलना है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो हमारे पास पोलैरिटी यूं आएगी, करंट यहां से स्टार्ट करेगा। अब डायोड D1 रिवर्स बाइस में है लेकिन डायोड D2 फॉरवर्ड बाइस में है। करंट यहां से फ्लो करेगा और अपना लूप जो है वो कंप्लीट करेगा। इस दौरान क्या हो रहा है, हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी है जो कि सीरीज में है डायोड D2 के साथ। अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो 0.7 इसके क्रॉस ड्रॉप होंगे विद नेगेटिव साइन, बिकॉज नेगेटिव हाफ का ड्यूरेशन चल रहा है। तो -0.7 विद -5 वोल्ट हमारे पास ओवरऑल क्या होगा, -5.7 वोल्ट अक्रॉस द नेगेटिव हाफ साइकिल या अक्रॉस द आउटपुट। आउटपुट में जब पॉजिटिव हाफ होगा तो 5.7 और नेगेटिव हाफ होगा तो -5.7 हमें आउटपुट मिलेगा। Let's have a look on the solution. Here you can see that when the voltage at point A reaches +5.7, diode D1 conducts and limits the waveform to 5.7 volt. Diode D2 does not conduct until the voltage reach -5.7. यानी डायोड D1 का 5.7 पे कंडक्शन स्टार्ट करना था और डायोड D2 ने -5.7 पे कंडक्शन स्टार्ट करना था। तो जब कंडक्शन स्टार्ट कर जाता है इसका मतलब है कि आउटपुट पे आपको बस अब यही चीज मिलनी है। 5.7 तक वो कंडक्शन नहीं कर रहा था, 5.7 के बाद स्टार्ट करेगा। सो वी आर हैविंग कंटिन्यूअसली 5.7 at the positive side of the output. Therefore, positive voltage above 5.7 are clipped and negative voltage below -5.7 are clipped off. The resulting output voltage waveform is shown in figure 2.59. Here you can see that +5.7 or negative में -5.7 volt. Diode clamper, which is also known as a DC restorer, as clamper adds a DC level to an AC voltage, that's why it is known as a DC restorer। यानी जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि जो हमारे पास इनपुट पर AC वोल्टेज होगा उसमें DC लेवल को ऐड किया जाएगा, DC लेवल को क्लैम्प किया जाएगा। इसी निस्बत से हम इसको DC रिस्टोरर भी कहते हैं या सिंपली हम इसको क्लैम्पर सर्किट भी कह सकते हैं। Types of clampers are positive clamper and negative clamper. So starting with the positive clamper,
लेट इंसर्ट अ पॉजिटिव डीसी लेवल इन द आउटपुट वेवफॉर्म। पॉजिटिव क्लैंपर या पॉजिटिव क्लैंपिंग से मुराद कि आप अपने आउटपुट वेवफॉर्म में पॉजिटिव डीसी लेवल ऐड करवा दें या इंसर्ट करवा दें। मसलन अगर हम कहें कि लेट सपोज हमारे पास ये एक आउटपुट पे हमें वेवफॉर्म मिलना है इस तरह का, ठीक है, जिसमें हमारे पास डीसी लेवल जो है इस वक्त 0 वोल्ट है। अगर हम इस सिग्नल के अंदर जो कि एसी सिग्नल है या ये जो हमारे पास आउटपुट सिग्नल है, हम से यहाँ पर 5 वोल्ट इस डीसी लेवल में ऐड करवा दें, तो उससे क्या होगा कि हमारा ये जो सिग्नल होगा वो 0 के बजाय नाउ इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 5 वोल्ट लाइक दिस वन, कि अब वो 5 वोल्ट से स्टार्ट करेगा बजाय ये कि वो 0 से स्टार्ट करे। सो हमने क्या किया, उसको पॉजिटिव की तरफ क्लैंप ऑफ करवा दिया। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम यहाँ पर -5 वोल्ट ऐड करवाएंगे तो अब हमारा वही सिग्नल जो कि 5 वोल्ट से शुरू हो रहा था अब लेट से -5 से शुरू हो रहा है एंड वी विल हैव अ क्लैंपिंग एक्शन लाइक दिस वन। हमारे पास ये जो सिग्नल है, जो आउटपुट है, वो नीचे की तरफ क्लैंप ऑफ हो जाएगा। So starting with the positive clamper, it inserts a positive DC level in the output waveform. Consider the first negative half cycle of the input voltage. अब इसके वर्किंग को समझने के लिए हम स्टार्ट लेते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल से, इनपुट वोल्टेज का नेगेटिव हाफ साइकिल। सो व्हेन द इनपुट वोल्टेज गोज नेगेटिव, जब हमारे पास नेगेटिव हाफ चल रहा है, यानी हमारे इनपुट में नेगेटिव हाफ साइकिल का जो ड्यूरेशन है, फॉर दैट नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड इज इन फॉरवर्ड बाइस। डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस में होगा। यहाँ पर हम इसके सर्किट को अगर एक नजर देख लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल है, हमने पॉजिटिव को फिल वक्त जो है वो इग्नोर किया हुआ है और हम स्टार्ट ले रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल से, ताकि हम इसके ऑपरेशन को इजीली समझ सकें। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, हमारे पास पोलैरिटी इस तरह से होगी कि नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव, करंट पॉजिटिव से स्टार्ट करेगा और जब इस डायोड के एक क्रॉस आना चाहेगा तो डायोड इस वक्त फॉरवर्ड बाइस में है। जब ये फॉरवर्ड बाइस में है तो हम कह सकते हैं कि करंट इनमें से गुजरने के बाद कैपेसिटर के एक क्रॉस आएगा और कैपेसिटर से होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा। यानी इस दौरान जब ये फॉरवर्ड बाइस में था, कंडक्शन कर रहा था, करंट आगे आया और इस कैपेसिटर को उसने फुली चार्ज कर दिया। कितना फुली चार्ज कर दिया, जितना हमारे पास हमारे इस इनपुट वोल्टेज में मैक्सिमम वोल्टेज थी, लाइक जिसको हमने -Vp इन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो -Vp इन अगर डायोड आइडियल है तो हम इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर डायोड प्रैक्टिकल है तो इसका मतलब है 0.7 तो उसने कंज्यूम करने ही करने हैं, ठीक है। तो 0.7 यहाँ पे ड्रॉप होगा और बाकी जितना भी होगा वो हमारे इस कैपेसिटर में जाके सेव हो जाएगा। लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये सिग्नल 10 वोल्ट का है, तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान -10 वोल्ट होगा, 0.7 हमारा कंज्यूम करेगा या ड्रॉप करेगा हमारा डायोड, तो कैपेसिटर के अक्रॉस हमें क्या मिलेगा, 9.3 वोल्ट विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट वोल्टेज। फिर allowing the capacitor to charge to near the peak of the input, यानी हमारे पास इनपुट का जो पीक था वहां तक हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। जस्ट आफ्टर द नेगेटिव पीक द डायोड इज अगेन रिवर्स बाइस। जब नेगेटिव पीक खत्म होगा तो हमारा डायोड रिवर्स बाइस में हो जाएगा, यानी पॉजिटिव के लिए रिवर्स बाइस में होगा और इस पॉजिटिव के दौरान अब डायोड रिवर्स बाइस में है और रिवर्स बाइस में होने का मतलब है इसने किसी किस्म की कंडक्शन नहीं करनी। फिर क्या होगा, the capacitor discharge through the high resistance of RL. कैपेसिटर डिस्चार्ज वेरी लिटिल। अब क्या मतलब है कि जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल का दौरान आएगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान हमारे पास करंट की पोलैरिटी हो जाएगी। लाइक अगर हम इसी डायग्राम में देखें, ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, करंट यहाँ से आना चाहेगा और जब यहाँ पर आएगा तो डायोड रिवर्स बाइस में उसको मिल रहा है और रिवर्स बाइस में मिलने का मतलब है कि हमारे पास कंडक्शन नहीं हो पा रही। तो जब कंडक्शन नहीं हो पा रही, कैपेसिटर में मौजूद जितना भी वोल्टेज था विच इज -9.3 वोल्ट, अब वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा एक रास्ता RL। हम आउटपुट किस चीज के क्रॉस ले रहे हैं, वी आर टेकिंग आउटपुट एक रास्ता RL। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास डायोड के एक रास पॉजिटिव हाफ मौजूद था जो कि लेट से 10 वोल्ट था
और ये अकेला नहीं था बल्कि इस दौरान हमारे पास इस कैपेसिटर में मौजूद 9.3 वोल्ट भी डिस्चार्ज हो रहा था। चार्जिंग इस डायरेक्शन में हो रही थी लेकिन डिस्चार्जिंग हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में हुआ करेगी। तो हम यहाँ पर ये 9.3 के बजाय एक्चुअल में क्रॉस RL 9.3 विद प्लस साइन ले रहे हैं, नेगेटिव के बजाय प्लस हमें मिल रहा है। तो कलेक्टिवली दो चीजें हमें मिल रही है, एक 9.3 वोल्ट कैपेसिटर का और एक आने वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल जो कि डायोड के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है। तो 10 वोल्ट प्लस 9.3 वोल्ट कलेक्टिवली we will have 19.3 वोल्ट एज अ पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड पे हमें 19.3 वोल्ट मिलेगा। सिग्नल हमारा वही है, मैक्सिमम 10 to 10 यानी 10 वोल्ट पीक पॉजिटिव और 10 वोल्ट पीक नेगेटिव की तरफ, 10 to -10 वोल्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास 19.3 आएगा इसमें सिग्नल जो है वो 10 वोल्ट का है और ये 9.3 इसमें डीसी लेवल को हमने रिस्टोर करवा दिया है या इंसर्ट करवा दिया है। तो जो सिग्नल पहले 0 से स्टार्ट हो रहा था अब वो 0 के बजाय 9.3 वोल्ट से स्टार्ट होगा। 9.3 से 10 ऊपर की तरफ और 9.3 से 10 नीचे की तरफ। सो यू कैन से दैट कि सिर्फ 0.7 जो है वो इस जीरो लाइन से नीचे आ रहा है, बाकी इस सिग्नल से इस लाइन से यहाँ तक हमारे पास 19.3 वोल्ट हमें मिल रहा है। तो कलेक्टिवली अगर हम 19.3 को 0.7 के साथ ऐड करेंगे हमारे सिग्नल में कोई फर्क नहीं आया, 20 वोल्ट का था 20 वोल्ट का ही है। सिर्फ ये हो चुका है कि हमारा सिग्नल आउटपुट पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो चुका है और इसी शिफ्टिंग को हम एक्चुअल में क्लैंपिंग कहते हैं। Now in case of a negative clamper, if the diode is turned around, हम डायोड को रिवर्स कर देते हैं, उसकी पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं। A negative DC voltage is applied to the input voltage to produce the output voltage as shown in below। अब क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा हमारे पास करंट यहाँ से आएगा। अब पॉजिटिव के दौरान हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा है क्योंकि डायोड कंडक्शन कर रहा है और डायोड के क्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है, ओनली 0.7 वोल्ट। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव साइड पर हमें सिर्फ 0.7 वोल्ट मिल रहा है जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था, क्योंकि डायोड के क्रॉस सिर्फ 0.7 था और इस दौरान कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा था। लेकिन कितना तक चार्ज होगा, नो इट हैज बीन चार्ज अप टू द 9.3 वोल्ट। 0.7 और 9.3 कलेक्टिवली 10 वोल्ट बन रहे हैं। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा -10 वोल्ट की बात होगी तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव ऊपर वाला नेगेटिव। अब हम पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं और जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो डायोड अब हमारे पास रिवर्स बाइस में है। डायोड का रिवर्स बाइस में होना यहाँ पर -10 का -10 ड्रॉप हो रहा है। एक तो ये चीज आ गई। दूसरी क्या था कि अब डायोड चूंकि कंडक्शन नहीं कर रहा तो कैपेसिटर में जो पहले से 9.3 मौजूद था जो कि चार्ज हुआ था पॉजिटिव के दौरान, नेगेटिव के दौरान पोलैरिटी रिवर्स होने की वजह से अब उसने क्या होना है, डिस्चार्ज होना है। तो चार्जिंग इस सूरत में हुई थी, डिस्चार्जिंग हम कह सकते हैं कि लेट्स से इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पर -10 ये वाला और यहाँ से आने वाला यानी इस कैपेसिटर से आने वाला -9.3 ये भी यहाँ पर RL के क्रॉस हमें मिलेगा। तो -9.3 यहाँ से और इनपुट से -10 कलेक्टिवली ये क्या हो जाएंगे, -19.3 एंड यू विल सी दैट कि हमारे पास जो आउटपुट मिला इसमें मैक्सिमम जो पॉइंट है दैट इज -19.3 फ्रॉम हियर। ठीक है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव की तरफ सिर्फ 0.7, नीचे की तरफ -19.3। दोनों को अगर हम देखें 19.3 के साथ अगर आप 0.7 जमा करें तो सिग्नल वही है, 20 वोल्ट का ही सिग्नल है पीक टू पीक। फर्क सिर्फ ये है कि अब हमारे पास डीसी लेवल 0 नहीं है बल्कि नाउ दैट इज से 9.3, बल्कि 9.3 भी नहीं -9.3 जो कि हमें कैपेसिटर की वजह से जो है वो मिल चुका है। तो अब हमारा सिग्नल -9.3 से स्टार्ट करेगा तो 10 वोल्ट कहाँ पे पूरे होंगे, 0.7 पे, और फिर नीचे की तरफ अगर वो आएगा तो -19.3 पर इसकी 10 वोल्ट जो है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ से इनपुट पे जो सिग्नल था आउटपुट पे वही सिग्नल है, सिर्फ नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है और इसी शिफ्टिंग को एक्चुअली हम नेगेटिव क्लैंपिंग कहते हैं। An example is given where we have to find the output voltage
according to this example, what is the output voltage that you would expect to observe across RL? आपको इस RL के across किस किस्म का आउटपुट मिलेगा in the clamping circuit of figure 2.65. Assume that RC is large enough to prevent significant capacitor discharge. यानी RC टाइम कांस्टेंट जो है वो इतना ज्यादा है कि आपके पास कैपेसिटर जो है उसकी डिस्चार्जिंग को डिले कर रहा है या बहुत मामूली डिस्चार्ज जो है वो हो रहा है। ओके, हम कहते हैं 24 वोल्ट का इनपुट सिग्नल है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो हमारे पास करंट की पोलैरिटी यूं होगी, हमारा डायोड कंडक्शन कर रहा है, तो कंडक्शन करने की वजह से हमारे पास पॉजिटिव के दौरान सिर्फ 0.7 वोल्ट मिलेगा। जब पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, नो दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव, अब हमारे पास करंट रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा था, तो -24 के लिए डायोड रिवर्स बायस में था, तो एक तो डायोड के क्रॉस -24 वोल्ट ड्रॉप होंगे क्योंकि ये उसको कंडक्शन नहीं करवा रहा, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो कर रहा है। और जब पॉजिटिव हाफ था तो 24 में से 0.7 माइनस करके 23.7 तक हमारा कैपेसिटर भी चार्ज हो चुका था। अब यहाँ पर सिर्फ -24 नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये जो मौजूद 23.7 था ये भी ड्रॉप हो रहा है विद नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन में। सो -24 -23.7 वी आर हैविंग माइनस, अगर हम देखें सॉरी दैट इज नॉट 23.7, 23.3 हमें मिलेगा। सो वी आर हैविंग 47.3 वोल्ट एट द नेगेटिव साइड। तो चूंकि हमारा सिग्नल बहुत थोड़ा जो है पॉजिटिव में है और मेजरली जो है वो नेगेटिव में है, सो दैट इज अ नेगेटिव क्लैम्पर। अगर हम इसके सोल्यूशन को देखें और इस सिग्नल को देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो जीरो लेवल था अब वो जीरो नहीं रहा, बल्कि वो 23.3 वोल्ट पे शिफ्ट हो चुका है, जो कि कैपेसिटर के क्रॉस स्टोरेज थी। और सिर्फ 0.7 हमें इस जीरो डीसी लेवल से ऊपर यानी पॉजिटिव में मिल रहा है, बाकी पूरे का पूरा सिग्नल जो है हमें नेगेटिव में मिल रहा है। सो कलेक्टिवली हमारे पास मैक्सिमम पीक कितना उसका बन रहा है 47.3 वोल्ट। Now the voltage multipliers जैसा कि नाम से जाहिर है they are using the clamping action। वोल्टेज मल्टीप्लायर से मुराद के आप वोल्टेज को डबल, ट्रिपल या क्वाड्रपल बना सकते हैं, 4 गुना 2, 3 गुना 2 गुना आप उसको बना सकते हैं। So these are the application of clampers। हम कह सकते हैं कि ये जो वोल्टेज मल्टीप्लायर है ये एक्चुअली क्लैंपिंग एक्शन को ही फॉलो कर रहे हैं to increase peak rectified voltage without the necessity of increasing the transformer voltage rating। यानी ट्रांसफार्मर को चेंज किए बगैर या उसके टर्न्स को या उसकी जो वोल्टेज रेटिंग्स है उसको छेड़े बगैर आप अपने वोल्टेज को क्लैंपिंग एक्शन के थ्रू डबलर या ट्रिपलर या क्वाड्रपलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आप वोल्टेज डबल करवा सकते हैं, ट्रिपल करवा सकते हैं या उसको 4 टाइम इंक्रीज करवा सकते हैं। सो द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 2, 3 एंड 4 आर कॉमन। नॉर्मली हम वोल्टेज डबलर, ट्रिपलर या क्वाड्रपलर तक ही यूज कर रहे हैं। वोल्टेज मल्टीप्लायर आर यूज्ड इन हाई वोल्टेज, लो करंट एप्लीकेशन सच एज कैथोड रे ट्यूब्स एंड पार्टिकल एक्सेलरेटर्स या जो टीवी रिसीवर्स वगैरह हैं उनमें हम कॉमनली इसको यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज अ वोल्टेज डबलर? A voltage multiplier with a multiplication factor of 2, यानी डबलर क्या होगा कि जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होगा that will be a 2, यानी वोल्टेज को डबल करने वाला या वोल्टेज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने वाला। So it has two types of voltage doubler। एक को कहा जाता है हाफ वेव वोल्टेज डबलर और दूसरे को कहा जाएगा फुल वेव वोल्टेज डबलर। हाफ वेव वोल्टेज डबलर का मतलब है कि लेट सपोज अगर पॉजिटिव वोल्टेज डबलर है तो ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को ही डबल करेगा, और अगर नेगेटिव है तो फिर वो नेगेटिव करेगा। तो फिर कंप्लीट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हाफ डबलर और दूसरा हाफ डबलर, यानी एक पॉजिटिव हाफ डबलर एक नेगेटिव हाफ डबलर, दोनों को कंबाइन करके हम फुल वेव वोल्टेज डबलर जो है वो बना सकते हैं। सो हाफ वेव वोल्टेज डबलर इज शोन इन फिगर 2.67। यहाँ पर शो किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के वैल्यू जो है लेट्स से वो पीक वीपी है जो कि हमें सेकेंडरी पे मिल रहा है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, डायोड D1 उसको कंडक्ट करेगा, ठीक है, और डायोड D1 के क्रॉस 0.7 मिलेगा पॉजिटिव के दौरान, ठीक है। उस दौरान हमारे पास कैपेसिटर फुली जो है वो चार्ज हो जाएगा -0.7। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान हम देख सकते हैं कि हमारे पास
जो नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से आते हुए अब हमारे पास डायोड D2 जो है वो क्या है, फॉरवर्ड बाइस में है। तो पॉजिटिव के लिए D1 फॉरवर्ड बाइस में था, नेगेटिव के लिए D2 फॉरवर्ड बाइस में है। जहां पर D2 फॉरवर्ड बाइस में है तो कैपेसिटर C2 चार्ज हो गया था, लेकिन हमने देखा था कि ये जो कैपेसिटर है ये पॉजिटिव के दौरान चार्ज हो गया था, नेगेटिव के दौरान इसने क्या होना है, डिस्चार्ज होना है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल अब हमारे पास लेट्स से अगर -10 वोल्ट है तो -10 वोल्ट अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ ये -9.3 जो है वो कैपेसिटर का भी है। तो कलेक्टिवली हमें अप्रोक्सीमेटली 2Vp तक का जो है वो मिल रहा है। अगर हम डायोड को आइडियल कंसिडर कर लेना तो हम कह सकते हैं कि जैसे फॉरवर्ड बाइस में इसने किसी किस्म का ड्रॉप नहीं किया, सारे का सारा यहाँ पर था, तो आउटपुट पे हमें 2Vp जो है वो मिल जाएगा। बिल्कुल इसी अंदाज में यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि D1 फॉरवर्ड बाइस में है, D2 रिवर्स बाइस में है, कैपेसिटर जो C1 जो है वो चार्ज होता है अप टू Vp, जैसे कि पार्ट ए में शो किया गया है। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 फॉरवर्ड बाइस में होगा, D1 रिवर्स बाइस में होगा, लेकिन D2 अब अकेला नहीं है बल्कि C1 भी डिस्चार्ज हो रहा है। तो C2 के एकरास हमारे पास 2Vp तक का करंट जो है वो मौजूद होगा। किरचॉफ करंट लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे तो वी कैन से दैट के वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C2 विल बी इक्वल टू 2Vp। बाकी की जो एक्सप्लेनेशन है और बाकी की जो टाइप्स हैं लाइक फुल वेव वोल्टेज डबलर, वोल्टेज ट्रिपलर एंड द वोल्टेज क्वाड्रपलर, दीज आर योर होम असाइनमेंट्स, आप इसको खुद सीख लें। In lecture number 10 we will discuss the special purpose diodes। चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें हम कुछ ऐसे डायोड्स पढ़ेंगे जिनको एक स्पेसिफिक मकसद के लिए, एक स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल वी विल डिस्कस द ज़ीनर डायोड, फिर वैरेक्टर, एलईडी, फोटो डायोड, ये चंद टाइप्स हैं हमारे पास स्पेशल पर्पस डायोड की। We will focus on the Zener diode. So starting with the Zener diode, we will discuss the schematic symbol of a Zener diode, its working, and the Zener breakdown, the avalanche breakdown, जो कि 2 टाइप ऑफ ब्रेकडाउन हम यूज करते हैं Zener डायोड में, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ब्रेकडाउन कैरेक्टरिस्टिक्स, देन वी विल मूव टुवर्ड द Zener रेगुलेशन कि ये Zener डायोड रेगुलेटर के तौर पर कैसे यूज होता है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट्स हम देखेंगे कि टेम्परेचर वेरी करने से Zener डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या असर पड़ता है, एंड फाइनली द Zener पावर डिसिपेशन एंड द पावर डी रेटिंग को भी हम डिस्कस करेंगे। Thank you very much. That is all for today. If you have any question, you can ask me through my email address shahid.csit@sood.edu.pk. Once again, thank you very much.